Hello student, welcome back to our class. Today we are going to deal with the states of matter. In previous class we have studied about the physical classification of matter, that is solid state, liquid state and gaseous state. Solid state in which intermolecular space are negligible and force is strongest. Force between the particles is strongest. While in liquid state, the intermolecular space are slightly greater than solid, and that's why intermolecular force is weakest than solid state. In similar way, we have studied gaseous state in which intermolecular space are enlarged. That is why the force between the particles of gaseous state is negligible. These are the three states of matter which are being classified on the basis of physical classification. In these states of matter are interconvertible to one another with the effect of temperature or pressure, as we have studied that when we increase the temperature of states of matter like solid state, it changes to liquid, and when we increases more temperature, the liquid state changes to gaseous state, and vice versa. Similarly, when we increase the pressure of gaseous state, it becomes liquid, and when we increase the pressure of liquid, the liquid becomes solid. So here we conclude that temperature and pressure are the two factors on which states of matter depends, due to which it changes its states of matter, and we have defined certain terms like freezing, boiling, boiling point, melting, latent heat. These are the certain points which we have defined in the previous states of matter: solid state, liquid state and gaseous state. With suitable example, today we are going to deal with the two states of matter other than these three states of matter. We can say that there are also two states of matter, that is plasma state and Bose-Einstein state, which are discovered later. So we are going to study the plasma state. Plasma state is a new state of matter which is known as or called plasma state. This plasma state is a type of a state of matter which does not fit in the criteria of known three states of matter, that is solid, liquid, gas. Means प्लाज्मा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि न तो सॉलिड स्टेट में फिट करता है, न ही लिक्विड स्टेट और न ही गैसियस स्टेट। इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में इस स्टेट का क्राइटेरिया किसी में फुलफिल नहीं होता है। सो वी कैन से द प्लाज्मा स्टेट इज अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। ये है क्या इसका एप्लीकेशन होता है? तो वी हैव सन इन आवर यूनिवर्स, वी सी सन एवरी डे। Sun provides us enormous amount of light. How it occurs, or how the sun provides us enormous amount of light? कैसे होता है?
क्यों होता है, किस प्रकार से होता है? तो एज वी हैव स्टडीड दैट आवर अर्थ सरफेस हैज 3 लेयर, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सपोज करते हैं कि ये हमारा अर्थ है, तो यहां पे 3 लेयर होता है, तो ये कोर हो जाएगा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट यानी कि द अपर पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज क्रस्ट, मिडिल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज मेंटल, एंड द स्पेस around the center, surrounding the centers of earth is core part of earth surface. Similarly, inside the sun, the core part of sun, in the core part of sun, suppose this is sun, so this part of sun in which chemical reaction occur. Due to these chemical reaction which occur inside the core of sun releases enormous amount of light, heat and light in the form of energy, which we get on the earth surface. Imagine the light or energy produced inside the core of sun, only 1% of energy comes to the surface periphery of earth surface. यानी कि जितना एनर्जी सन के कोर में प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी का मात्र 1% हम लोग अर्थ सरफेस पे गेट करते हैं, और वही 1% के यूज से ह्यूमन का सर्वाइवल या हम लोग वेरियस एप्लीकेशन जैसे सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर पैनल, इस तरह का यूज करते हैं। उस 1% में जो लाइट अर्थ सरफेस पे आता है उसमें भी 3 क्राइटेरिया हो जाता है। कुछ लाइट जो होता है, अब यहां पर 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। जो लाइट सन से आता हुआ होता है तो वो लाइट विजिबल लाइट कहलाता है, जो कि विजिबल लाइट वही होगा जो कि 400 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। जिस लाइट का रेंज 400 से 750 नैनोमीटर तक होगा वही विजिबल लाइट कहलाता है, विजिबल एनर्जी होगा। 400 मीटर से पहले जो होता है इंफ्रारेड रेज कहलाता है, इंफ्रारेड लाइट। 750 के बाद जो होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट कहलाता है। तो इस तरह से जो भी लाइट अर्थ सरफेस पे 1% आता है उसमें भी हम लोग 3 क्राइटेरिया में उसको बांटते हैं, दैट इज इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। अब यहां पर जो एनर्जी 1% हम लोग को मिला, तो सिमिलरली जब हम किसी स्टेट्स ऑफ मैटर को लेते हैं तो उसी तरह का एनर्जी हम लोग यहां पे भी गेन करेंगे, मिलेगा। जब हम किसी तरह के सॉलिड स्टेट को लिए, अब सपोज करते हैं कि उस सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर स्लाइटली धीरे धीरे हम इंक्रीज करना शुरू कर दें। जैसे जैसे सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैसियस में चेंज होता है। क्यों, कैसे? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण द कोलिजन बिटवीन द इंटर मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर इंक्रीजेज, और कोलिजन होने के कारण पार्टिकल्स के बीच स्पेस इंक्रीज करता है, और स्पेस जब इंक्रीज करता है तो फोर्स कमते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। और ऐसा होने के कारण सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है और लिक्विड गैसियस में चेंज होगा। पुनः जब हम गैसियस स्टेट का टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, गैसियस स्टेट का टेम्परेचर जब और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो गैसियस पार्टिकल या गैसियस मॉलिक्यूल गैसियस आयन के रूप में, एनर्जी के रूप में लिबरेट करता है।
यानी कि जब हम किसी तरह का पार्टिकल लिए, सपोज किए कि सोडियम लिए, और जब हम इसमें एनर्जी सप्लाई किए तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद सोडियम आयन का फॉर्मेशन करता है। कब? जब ये एनर्जी को रिलीज करता है। जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो सोडियम आयन का फॉर्मेशन करता है। सेम उसी प्रकार से जब हम गैसियस स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैसियस स्टेट, गैसियस आयंस आर फॉर्म्ड। आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल होता है, यानी कि गैसियस आयन का फॉर्मेशन होना। इसी न्यू स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इसी न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आयरन का रॉड लेते हैं, सपोज कर लिए कि ये आयरन रॉड है। इस आयरन रॉड को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा? हीट होता है, रेड हॉट आयरन हो जाता है। और जब रेड हॉट आयरन होता है तो रेड ग्लो करने के बाद उससे एनर्जी के जैसा लिबरेट होता हुआ दिखाई देता है। तो वही लिबरेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कोई भी पार्टिकल 3 स्टेट को फुलफिल करता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब एनर्जी सप्लाई किया जाए, हीट किया जाए, या बर्नर के पास जब हम उसको रखेंगे तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करते करते एक समय ऐसा आता है कि एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी समाप्त हो जाता है। जब ऐसा होता है तो उस समय वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद जो भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उस एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन, एक्साइटेड और रिलीजिंग स्टेट, 3 तरह का स्टेट ऑब्जेक्ट के पास होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास। तो सेम उसी प्रकार से जब हम गैसियस आयन को, गैसियस पार्टिकल को जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आता है वो एनर्जी को लिबरेट करना शुरू कर देता है। और जब एनर्जी लिबरेट करेगा तो आयन का फॉर्मेशन होगा। और यही जो गैसियस आयन का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग नहीं, एक साइंटिस्ट के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि इसी न्यू स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। यही क्या कहलाता है? प्लाज्मा स्टेट कहलाता है, जो कि किसी भी, जो पीछे हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। सो वी कैन से दैट द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा स्टेट, जो कि 4th स्टेट कहलाता है। इसी 4th स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ये कैसा स्टेट होता है? तो ये सुपर एनर्जेटिक स्टेट होता है। 4th a state of matter in which gaseous ion are formed which is super energetic and super excited state. In this way we can define the plasma state. Yeah, a new state of matter which is produced when gaseous particle heated or the temperature of gaseous particle is increased, the gaseous ion is formed, which is super energetic and super excited state, which is in super energetic
एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट। सुपर एनर्जेटिक कहने का मतलब जो हम लोग पीछे देखे कि जो सन के कोर में होता है कितना एनर्जी होगा, कितना हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि सन के कोर के पास कितना सारा एनर्जी होगा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना हम लोग सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। तो इस तरह के इस न्यू स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। ये जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर का डिस्कवरी हुआ, इससे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एब्जॉर्ब किया गया। यानी कि हम लोग जो हीलियम का यूज फ्लोरेसेंट ट्यूब में करते हैं, तो इसी स्टेट्स ऑफ मैटर के कारण जो हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब का यूज करते हैं, तो वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा स्टेट है। ट्यूब में हीलियम होता है और जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो वो एक चमक देता है, फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस होता है। किसके कारण? तो इस तरह के स्टेट के कारण। तो जब हम किसी भी गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो इट ग्लो, इट प्रोड्यूसेस अ ग्लो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, having a characteristic depending upon the nature of gas. This is the application of plasma state, that is new states of matter or fourth state of matter. So this is the fourth state of matter and चलिए शुरू। so the next one is Bose-Einstein condensation state. Bose-Einstein condensation state. We can simply say BECS, Bose-Einstein condensation state. This is the fifth states of matter noted by Indian scientist Satyendra Nath Bose on the basis of a statistical calculation. The concept of these fifth states of matter was given by the scientist Satyendra Nath Bose, which was produced in a supercooled process. For example, when we place a ice cube in a glass, the surface of glass becomes cooled, that is a layer comes up on the surface of glass. जैसे ही हम ठंडे पानी को या आइस क्यूब को किसी ग्लास में रखे तो ग्लास में रखने के बाद ग्लास के सरफेस पे, बाहर के सरफेस पे एक लेयर आ जाता है। और यही लेयर, ये क्यों आता है, किस कारण से आता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सुपर कूलिंग ऑफ गैस, सुपर कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज Bose-Einstein condensation, and the state of matter obtained in this process is known as Bose-Einstein condensation state. More about this state, the fifth states of matter, is a subject of higher level in which we study in upper class. So there are 5 states of matter: solid state, liquid state, gaseous state, and the 2 states of matter which we have studied now
the plasma state which is produced inside the core of a star or sun, and the Bose-Einstein condensation state which is produced during supercooling process. So these are the states of matter which we have studied. So all the students are informed that they should solve the problem of their textbook, and if any problem comes to that, they can comment to our channel. That's all for today.